First step, maths, book 6, chapter number 4, fractions. Hello students, how are you all? I hope all of you are doing really well. Today we will learn about fractions. वैसे तो फ्रैक्शन से हम सभी फेमिलियर हैं क्योंकि हम प्रीवियस क्लासेस से फ्रैक्शन पढ़ते आ रहे हैं, ओके? बट यहाँ पे देखेंगे हम इस क्लास में हम क्या कुछ नया सीखेंगे. सो फ्रैक्शंस एंड फ्रैक्शनल नंबर्स. Fraction means a part of a group or of a region. Suppose we have a stripe which is divided into 8 equal parts. After that 3 are shaded. It is clear that the shaded portion represents 3/8 and in numeral it is written as 3/8. हम सभी को पता है कि फ्रैक्शन क्या होता है, पार्ट ऑफ ग्रुप या फिर किसी रीजन का पार्ट. जैसे कि हमारे पास ये स्ट्राइप है, ये 8 इक्वल पार्ट पे आपकी डिवाइडेड है और 3 उसमें से शेडेड है. सो शेडेड पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 3/8 यानी कि 3/8. So another example, we can take a circle which is divided into 10 equal parts. Out of them 7 parts are shaded. Okay, so it is clear that shaded portion represents 7/10 यानी कि 7/10. Okay, now representation of a fraction on a number line. Suppose we have to represent 3/7, 5/7 and 8/7 on the number line. Draw a line OX. इस तरह से आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे OX. Okay, of any length, कोई भी लेंथ हो सकती है, and divide one part equal in 7 equal small parts and mark third part P on it. It shows 3/7, 5/7 and 8/7. So divide करना है वन पार्ट को इक्वली 7 इक्वल पार्ट्स में, और फिर जो थर्ड पार्ट है उसको आपने P नाम देना है, जैसे कि आपको यहाँ पे शो किया गया. ओके, सो सम मोर एग्जाम्पल्स आर गिवन बिलो. 1/4 is 1/4 and this is the figure. Okay, 5/10 is 5/10 and figure. 2/4 is 2/4 or figure, and 4/7 is 4/7 and this is a figure. So fraction is written in the form of A by B, means A by B. Here AB is numerator and B is denominator. Okay, so 6/11 की बात हम करें, 6 numerator है और 11 denominator. Example 1. Form a fraction whose numerator is 5 and denominator is 7. Numerator 5 है, denominator 17 है, so 5/17. Okay. Similarly, you will do B part. Example 2. Write the numerator and denominator of 4/7. Very easy, simple, students. 4 is the numerator, 7 is the denominator. Okay. Now, fractional part of a collection. Let us find 1/3 of a collection of 24 balls. 24 balls का 1/3 आपको find करना है. First, we will divide 24 balls into 3 equal parts as shown in adjoining figure. It is clear that each part contains 8 balls. देखिए आपके पास क्या है कि 24 balls हैं जिनको 3 equal parts में divide किया गया है. 1, 2, 3 और हर part में आपके कितने balls हैं बच्चों? 8 balls हैं. So 1/3 of a collection of 24 balls आपका क्या हो गया? 8 balls. Okay. Exercise is given over here. Students, do it yourself. Okay. Now, equivalent fractions. If 2 or more fractions have the same value, then they are called equivalent or equal fractions. It will be more clear by given figures. अगर 2 या ज़्यादा fractions जिनकी same value है, उन्हें हम कहते हैं equivalent या equal fractions. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. दिस इज 1/3, 2/6, 3/9, 4/12 एंड 5/15. लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको नहीं लगता कि ये जो सारा जो पार्ट है ना शेडेड सभी में, वो तो इक्वल ही है, लेकिन फ्रैक्शंस अलग अलग हैं. ओके, सो इट इज क्लियर दैट कि जितने आपके फ्रैक्शंस हैं, 5 के 5 फ्रैक्शंस ये इक्वल है. ओके, सो 1/3 इज इक्वल्स टू 2/6 इज इक्वल्स टू 3/9 इज इक्वल्स टू 4/12 इज इक्वल्स टू 5/15. और अगर आप इनको इनके सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो सब आएगा 1/3. ओके, सो इन ऐसे फ्रैक्शंस को हम बच्चों क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. ओके, एग्जाम्पल देखते हैं. राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/8. 3/8 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 8 को, मीन सेम नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर. ओके, सो 3 2s are 6, 8 2s are 16. ओके, एंड आगे आपको कितने निकालने हैं बच्चों? 5 निकालने हैं. ओके, सो नेक्स्ट 3 3s are 9, 8 3s are 24. Then 3 4s are 12, 8 4s are 32 is equals to
3 5s are 15, 8 5s are 40 and 3 6 are 18 and 8 6 are 48. सो ये आपके सारे बच्चों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया. अदरवाइज आप ऐसे मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं. ओके मैंने डायरेक्टली लिख दिया, आप मल्टीप्लाई करके भी नहीं लिख सकते. ओके सिमिलरली यू विल फाइंड 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ दीज फ्रैक्शंस. ओके नेक्स्ट वी हैव सिंपलेस्ट यानी कि लोएस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन. A fraction is said to be in the simplest or lowest form if its numerator and denominator have no common factor other than 1. कोई भी फ्रैक्शन को हम लोएस्ट फॉर्म में तब कहते हैं कि जब उसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता अदर देन 1. सो देयर आर 2 मेथड्स टू रिड्यूस अ फ्रैक्शन इनटू इट्स सिंपलेस्ट और लोएस्ट फॉर्म. सो 2 मेथड हैं, वो कौन से हैं? ए, सिंपली वी कैन कैंसिल बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेम नॉन जीरो नंबर इफ पॉसिबल. B, by taking HCF of both numerator and denominator and then after divide both numerator and denominator by their HCF. या तो आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कैंसिल कर दो सेम नॉन जीरो नंबर से अगर पॉसिबल है तो, और आप HCF ले सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एंड देन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम उस HCF से डिवाइड कर सकते हैं. ओके एग्जाम्पल 1, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू सिंपलेस्ट फॉर्म. ओके 96 by 120 है, तो पहले हम इसे रिड्यूस करेंगे. कैसे? 2 से डिवाइड करते हैं. आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं. 48 by 60 आ गया. अब 48 by 60 फिर से आपका डिवाइड हो सकता है 2 से. सो ये आपके पास आ जाएगा बच्चों 24 by 30. अब दोनों इवन नंबर्स हैं, अभी भी आपका 2 से हो सकता है दोनों. याद रखिएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं. ओके 2 से आपके पास आ जाएगा 12 by 15. अब 12 और 15 दोनों एक ऑड नंबर एक इवन है तो 2 से नहीं होगा, बट दोनों किसके टेबल में साथ में आते हैं? 3 की टेबल में. सो 12 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, 15 को भी डिवाइड करेंगे 3 से. सो 4 by 5 दिस इज द आंसर. ओके अब इन दोनों को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. सो 4 by 5 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म. ओके अब हम सेकेंड मेथड से ट्राई करते हैं बच्चों बी पार्ट को. सेकेंड मेथड क्या था आपका? HCF लेके. ओके So we have 84 by 126. This is the fraction. 84 और 126 का हम क्या करते हैं? HCF लेते हैं. Okay. So 126 को हम 84 से डिवाइड करेंगे. 84 1s are 84, 42 रिमाइंडर. तो नया डिवाइजर बन जाएगा 84 डिविडेंड. 42 2s are 84. Okay. तो बच्चों आपके पास HCF कितना आ गया? 42. So 84 और 126 इन दोनों को हम 42 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद बच्चों आपके पास आएगा 2 by 3. सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म. ओके एक्सरसाइज 4.2 इज देयर, डू इट योरसेल्फ. ओके लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस. लाइक फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर. वो फ्रैक्शन जिनका सेम डिनोमिनेटर होता है लाइक फ्रैक्शंस होते हैं. ओके जैसे कि एग्जाम्पल में देख सकते हैं आप सबके डिनोमिनेटर सेम है, मीन्स लाइक फ्रैक्शंस हैं. अनलाइक फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन. जैसे आप एग्जांपल में देखिए सभी के डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं तो ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं. ओके मेथड ऑफ कन्वर्टिंग अनलाइक फ्रैक्शंस टू लाइक फ्रैक्शंस. अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट करना है? A, find the LCM of denominators of all unlike fractions. B, now convert each denominator of unlike fractions equal to LCM by multiplying same suitable number to both numerator and denominator. एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे करते हैं. एग्जाम्पल है देखिए आपके पास 4 अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, इन्हें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. ओके सो वी हैव 2 by 5, 7 by 10, 3 by 8 and 1 by 6. सो हम एलसीएम ले लेंगे बच्चों किसका? 5, 10, 8 एंड 6 का. ओके सो चलिए देखते हैं एलसीएम क्या आता है. 5, 10, 8, 6 का. पहले 2 से करेंगे, फिर हम अगेन 2 से करेंगे, देन अगेन 2 से, फिर 3 से और फिर 5 से. अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24 and 24 5s are 120. सो बच्चों आपके पास आ गया एलसीएम 120. ओके अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपको कन्वर्ट करना है डिनोमिनेटर ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस इक्वल टू एलसीएम. तो बच्चों पहले हमारे पास है 2 by 5.
ओके अब डिनोमिनेटर को आपने क्या करना है, जैसे कि बी स्टेप में दिया गया था, हर डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करना है इक्वल टू एलसीएम। ओके सो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, 2 को भी करेंगे 24 से, सो 48/120। ओके एलसीएम हो गया 120। देन वी हैव 7/10, 10 को मल्टीप्लाई करना है 12 से, 7 को भी 12 से। ओके 12 7s are 84 और 120। नेक्स्ट इज 3/8। ओके 8 को बच्चों कितने से मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 120 आएगा, और 3 को भी आपको सेम नंबर से करना पड़ेगा। ओके सो आप करेंगे देखिए 15 से। ओके 3 को भी करेंगे 15 से, सो 45/120। नेक्स्ट वी हैव 1/6। अब कितने से मल्टीप्लाई करें कि 120 आ जाए, आप करेंगे 20 से, तो यहाँ भी 20 से, सो 20/120। ओके अब आप देखिए बच्चों, क्या ये सारे आपके लाइक फ्रैक्शन नहीं बन गए? 48/120, 84/120, 45/120 एंड 20/120, राइट? सो इसी तरह से आप किसी भी अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय टेकिंग द एलसीएम एंड देन मेकिंग ऑल द डिनोमिनेटर्स इक्वल टू एलसीएम, राइट? So next is comparison of fractions. There are 3 methods to compare the fraction. Number 1, by making same denominator, B, by making same numerator, और by C, cross multiplication method. तो 3 methods इन fractions को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो पहला देखते हैं by making same denominator. Same denominator हम कैसे बनाते हैं, अभी हमने पढ़ा। ओके Convert unlike fractions into like fractions. Now compare the numerator and see fraction having greater numerator is greater than other. So example के थ्रू करते हैं 1/12 and 5/18. So पहले हम LCM ले लेते हैं 12 and 18 का, जो कि आएगा 36. Now we will make the denominator 36. So we will multiply by 3 and here 3. 3/36. 5/18, 18 को 2 से करेंगे, 5 को भी 2 से करेंगे, 10/36। ओके अब आप इन्हें कंपेयर कर सकते हैं, 3/36 और 10/36। 10/36 इज ग्रेटर। ओके सो 3/36 था बच्चों आपका 1/12, 1/12 इज लेस देन 5/18, और आप ये भी कह सकते हैं कि 5/18 इज ग्रेटर देन 1/12। ओके नेक्स्ट number 2 method, by making same numerator. Number 1, find LCM of numerators. अब numerators का LCM find करना है, okay? And then make numerators of all fractions equal and fraction having smaller denominators greater than other with larger denominator. Okay? तो चलिए example के through करते हैं। 5/8 and 6/11. We have these two fractions and we have to compare them. Okay, so 5/8 and 6/11. So LCM बच्चों इस टाइम हम लेंगे न्यूमरेटर यानी 5 और 6 का, ये दोनों ही कोप्राइम है और कोप्राइम का प्रोडक्ट ही LCM होता है यानी 30। अब आपको न्यूमरेटर, रिमेंबर न्यूमरेटर 30 करना है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 8 को भी 6 से, 30/48, फिर 6/11, 5 से करेंगे, 5 से 30/55। ओके अब देखिए बच्चों यहाँ पे ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट क्या है, अब न्यूमरेटर आपका इक्वल है, सो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो ग्रेटर होगा। ओके सो दिस वन इज ग्रेटर। ओके और यू कैन से 5/8 इज ग्रेटर देन 6/11। ओके चलिए अब हम थर्ड मेथड देखते हैं, which is cross multiplication method. So let the fractions a by b and c by d, then find a into d. A into d and b into c. If AD is equals to BC, then A by B is equals to C by D. B. If AD is greater than BC, then A by B is greater than CD. C. If AD is less than BC, then A by B is less than CD. Okay? चलिए example के through समझते हैं। 5/12 and 9/13. Okay? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 5 into 13 आपके पास आ गया 65 एंड 12 into 9 आपके पास आ गया 108। ओके सो क्लियरली 65 इज लेस देन 108 और यू कैन से ए डी इज लेस देन बी सी, सो ए बी आपका हो गया, ए बाय बी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, स्मॉल, यानी कि 5/12 इज लेस देन 9/13।
ओके। एग्जाम्पल 2 में देखिए बच्चों, आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो सबसे पहले तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है, इसे लाइक फ्रैक्शन में करेंगे डिनोमिनेटर लेके, और फिर उसके बाद आप कंपेयर करेंगे, ओके, एंड देन अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, राइट। प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शंस. Proper fraction, a fraction whose numerator is less than its denominator is called a proper fraction. For example, आप इन example में देखिए numerator denominator से कम है, okay. Improper fraction, a fraction whose numerator is greater than or equal to denominator is called an improper fraction. अब improper fraction में numerator या तो denominator से बड़े होते हैं या उसके बराबर होते हैं, ओके। टिप्स, ऑल प्रॉपर फ्रैक्शंस हैव वैल्यूज लेस देन 1. जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं उनकी वैल्यू 1 से कम होती है, एंड ऑल इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैव द वैल्यू ईदर 1 और ग्रेटर देन 1. इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की वैल्यू या तो 1 होगी या 1 से ज़्यादा होगी, एंड एवरी नेचुरल नंबर इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ओके. नेक्स्ट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन. A combination of an integer and a proper fraction is called a mixed fraction. For example, 6 1 by 5. Okay, this is the integer 6 और 1 by 5 क्या है आपका fraction है. Okay, so method of converting given mixed fraction into an improper fraction. To obtain improper fraction, we multiply integral part by the denominator and add the numerator of the given mixed fraction to its product. Okay, so improper fraction आपका हो जाएगा integral part into denominator plus numerator upon denominator. इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ओके. सो कन्वर्ट करना है आपको दोनों को ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. सो लेट्स कन्वर्ट 3 होल 1 by 5. ओके, सो व्हाट विल यू डू, क्या बताया गया फॉर्मूला में कि इंटीग्रल पार्ट ही, दिस इज द इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है और उसमें न्यूमरेटर को प्लस कर देना है, और नीचे डिनोमिनेटर तो आपका सेम रहेगा, ओके. सो 3 into 5 plus 1 upon 5. 3 5s are 15 plus 1 16 by 5. ओके, सिमिलरली आप इसको भी इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे. नेक्स्ट, मैथड ऑफ कन्वर्टिंग अ गिवन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन. डिवाइड द न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर. Obtained quotient is the integral part and obtained remainder is numerator of the required mixed fraction. Okay, एग्जाम्पल के रूप से समझते हैं. अब हम रिवर्स कर रहे हैं, ओके. इम्प्रॉपर को हम मिक्स में चेंज कर रहे हैं. सो फर्स्ट विल टेक 53 by 8. 53 को 8 से डिवाइड करेंगे. 8 6 are 48. ओके, 13 minus 8 is 5. अब क्या बोला गया है कि obtain quotient is the integral part. आपका ये quotient है, ये इंटीग्रल पार्ट है, ओके. आपका जो रिमाइंडर है ये न्यूमरेटर है, और जो डिवाइजर है वो डिनोमिनेटर है, ओके. सो आपका बन जाएगा बच्चों ये 6 होल 5 by 8. ओके, सो सिमिलरली आप इस नंबर को भी यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे, ओके. एक्सरसाइज 4.3 is given over here. Do it yourself, okay. Now addition and subtraction of fractions. Number 1, addition of like fractions. Sum of like fractions is equals to sum of their numerator upon common denominator. Okay, अब जैसे एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें देखिए like fractions हैं, डिनोमिनेटर आपका सेम है, तो सिंपली आपने न्यूमरेटर को ऐड करना है. 4 + 2 + 3 और डिनोमिनेटर आपका कॉमन रहेगा. 4 + 2 6 + 3 9 by 19. ओके, सो इसी तरह से आपने सेकेंड एग्जाम्पल भी करना है. ये आपके मिक्स में पहले इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, एंड देखिए डिनोमिनेटर सेम ही है, ओके. फिर आप इसे ऐड करेंगे. ये तो था लाइक फ्रैक्शन का एडिशन. अब नेक्स्ट है एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस. चेंज द गिवन फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस एंड ऐड बाय अबव मेथड. पहले जो आपके अनलाइक फ्रैक्शन है उसे लाइक में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद हम प्लस करेंगे जैसे हमने ऊपर मेथड में किया, ओके. फॉर एग्जाम्पल आपके पास देखिए आपको क्या ऐड करना है. 1 by 12 plus 1 by 23 by 24 plus 1 by 18. Okay, so first let's find the LCM. LCM of 12, 24 and 18 का आता है बच्चों कितना, 72. Now let's make the denominator 72. Okay, 12 6 are 72 होता है, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 by 72. Then 3 by 24. 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आता है, 9 by 72. फिर यू हैव 18. 18 को 4 से करेंगे तो 4 by 72. अच्छा देखिए बच्चों, अभी लाइक फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट कर दिया है.
ओके 6/72, 9/72, 4/72. अब हम न्यूमरेटर को प्लस करेंगे, दैट इज 6 + 9 + 4, 6 + 9 + 4, और डिनोमिनेटर तो आपका कॉमन ही रहेगा. 9 + 6 15 + 4 19. ओके सो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों 19/72, राइट. नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस. सब्ट्रैक्शन भी बच्चों आपका सेम होता है, बस एडिशन के साम की जगह आपने सब्ट्रैक्शन का साइन लगाना है. ओके सो डिफरेंस ऑफ लाइक फ्रैक्शंस इज डिफरेंस ऑफ देयर न्यूमरेटर अपॉन कॉमन डिनोमिनेटर. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए आप न्यूमरेटर्स को माइनस करेंगे, डिनोमिनेटर आपका सेम रहेगा. एंड फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस तो क्या करेंगे कि फ्रैक्शंस को पहले लाइक फ्रैक्शंस में करेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे. ओके सो आपको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम दिस मिक्स फ्रैक्शन 4 2/6 - 2 1/9. पहले इसे इम्प्रॉपर में करते हैं. 6 4s are 24 + 2 26/6 minus 2 9s are 18 + 1 19/9. अब हम एलसीएम लेते हैं. एलसीएम ऑफ 6 and 9 18 आएगा बच्चों एलसीएम. ओके सो 26/6 18 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 3 से. सो आपका आ जाएगा 18 and 78. नेक्स्ट 19/9 आपको 18 करना है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 2 से. सो 38/18, राइट. अब हमने लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है. अब आप इस फ्रैक्शन में से इसको माइनस करेंगे. 78 - 38 अपॉन 18. ओके सो बच्चों ये आपके पास कितना आ जाएगा देखिए 40/18. अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में करेंगे. सो आपके पास आंसर आएगा 2 होल 4/18. और आप इसे आगे कट भी कर सकते हैं. 2 2s are 4, 2 9s are 18. So 2 whole 2/9. Okay, so similarly you will do other examples also. Okay. Exercise 4.4 is given over here, students. Do it yourself. And now let's do word problems. What should be added to 3 whole 3/10? इसमें हम कितना ऐड करें कि हमें 8 whole 4/15 मिल जाए. ओके सो लेट कर लेंगे. हमने x, इस नंबर में हमने x ऐड किया, द नंबर इज x एंड वी हैव गॉट दिस फ्रैक्शन. ओके सो अब देखिए पहले इसका इम्प्रॉपर में करते हैं. 3 10s are 30 + 3 33/10 plus x is equals to 15 8s are 120 plus 4 is 124/15. सो x आपका कितना आ जाएगा बच्चों 124/15 minus 33/10. ओके अब एलसीएम लेंगे 15 और 10 का, तो कितना आएगा 30. नाउ लेट्स मेक डिनोमिनेटर 30. कैसे करेंगे बच्चों देखिए 30 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 124 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. माइनस 30 करने के लिए 3 से, तो यहाँ भी 3 से. सो 33 × 3. सो x is equals to 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2 minus 99 अपॉन 30. और अब माइनस करेंगे तो आपके पास देखिए बच्चों कितना आ जाएगा 149/30. ओके अब ये इम्प्रॉपर में है तो आप इसे मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो आपके पास आ जाएगा बच्चों 4 whole 29/30. ओके सो इसी तरह से बच्चों आपने बाकी के वर्ड प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करनी है. ओके एक्सरसाइज 4.5 इज देयर जो आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स पे बेस्ड है बच्चों. डू इट योरसेल्फ एंड ऑल्सो कीप डूइंग प्रैक्टिस ऑफ दिस चैप्टर.